السلام علیکم ناظرین، 4TV خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ حیدرآباد کے نئے کمشنر CV آنند، 8 IPS عہدیداروں کے تبادلے، تعلیم BC زراعت کمیشن کے صدور کا اعلان، احکامات جاری۔ پہلی تاریخ کو تنخواہ دینے حکومت کا دعویٰ کھوکھلا، بایو ڈائیورسٹی کے ملازمین کو 1 سال سے تنخواہ نہیں دی گئی، ہریش راؤ کا الزام۔ حیدرآباد کے مشہور پبز پر ایکسائز انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی ٹیموں کا دھاوا، 4 افراد میں ڈرگس مثبت پائے گئے۔ اور میرچل ملاپور کے صنعتی علاقے میں پینٹ کی فیکٹری میں لگی آگ، بھاری مالی نقصان کا خدشہ، جانی نقصان نہیں۔ اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپر سے رابطہ کریں۔ QMax دے رہا ہے ریڈی بینکٹ ہال، 3 فلورز پر مشتمل، 5th 6th 7th فلور پر 6,000 کا 18,000 اسکوائر فٹ کا ریڈی میڈ بینکٹ ہال۔ آج ہی رجسٹری کرائیں اور آج سے ہی فنکشنز کی بکنگ کریں، وہ بھی بہترین پرائم لوکیشن ٹولی چوکی پر۔ منگنی، شادی، ولیمہ، برتھ ڈے پارٹیز، اینیورسری جیسی دیگر تقریبات کے لیے فلی ایئر کنڈیشن QMax کوہینور بینکٹ ہال، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر، ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، ڈالر ہلز الکاپور روڈ، موسا انکلیو، ایسے کالونی ٹولی چوکی، MSN ڈائمنڈ ہلز کالونی ٹولی چوکی، ایزل ریزیڈینسی ایسے کالونی ٹولی چوکی، سرین ہائٹس گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی، دارالامن ہیپی ہومز کالونی الکاپور، دارالخیر سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، ڈیلائٹ سوٹ beside سنا انکلیو ٹولی چوکی، اکبر انکلیو گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی۔ انکمپرومائزڈ کوالٹی کنسٹرکشنز، آن ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے۔ 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا، 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر واقع، جیسے معاون 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12، معاون گارڈن ٹاور سالار جنگ کالونی ٹولی چوکی، معاون ہائٹس ملے پلی، معاون زمزم لبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، معاون ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم، معاون فیمس ریسیڈنسی 7 ٹومز روڈ ٹولی چوکی، معاون پرل اور معاون ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، معاون مہاراجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ، معاون آشیانہ ملے پلی، معاون کلاسک ماسب ٹینک۔ بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ ڈیسائٹ رتندیپ سپر مارکیٹ شیخ پیٹ روڈ ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اس مہنگائی کے دور میں سونا خریدنا ہوا آسان۔ جوہری گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم ٹولی چوکی لایا ہے گولڈ بچت اسکیم۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے اب سونا خریدیں 11 مہینے کی آسان اقساط پر، اور 12ویں مہینے میں اپنا سونا گھر لے جائیں ایوریج گولڈ ریٹ پر، بنا کوئی ایکسٹرا چارج اور 0% انٹرسٹ کے ساتھ۔ 916 ہال مارک کی جیولری، نو ویسٹیج، نو میکنگ چارجز کے ساتھ اب ہوگی بچت پیسوں کی، اور گھر آئے گا سونا، وہ بھی آسان اقساط پر۔ آپ کا بھروسہ، ہماری پہچان، جوہری، کرافٹڈ جسٹ فار یو، گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ سینئر IPS عہدیدار ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن بیورو CV آنند ایک بار پھر شہر حیدرآباد کے پولیس کمشنر بن گئے۔ حکومت نے ہفتے کے دن اس سلسلے میں ایک حکم نامہ جاری کیا ہے۔ وہ موجودہ کمشنر کے سرینیواس ریڈی کی جگہ لیں گے، جن کا تبادلہ کر دیا گیا۔ سرینیواس ریڈی کو ڈائریکٹر جنرل ویجیلنس اینڈ انفورسمنٹ اور با اعتبار عہدہ پرنسپل سیکرٹری جنرل ایڈمنسٹریشن VNE مقرر کیا گیا ہے۔ 1991 بیچ کے IPS CV آنند کو دسمبر 2021 میں حیدرآباد کا پولیس کمشنر مقرر کیا گیا تھا۔ تاہم 2023 میں اسمبلی کے عام انتخابات کے وقت الیکشن کمیشن نے ان کو اس عہدے سے ہٹا دیا اور ان کی جگہ سندیپ شنڈالیا کو حیدرآباد پولیس کمشنر مقرر کیا۔
इंतखाबी नताइज के बाद कांग्रेस ने इख्तिदार हासिल किया और इस वक्त पुलिस नज़्म नस्क में बड़े पैमाने पर अदोबदल करते हुए के श्रीनिवास रेड्डी को शहर का नया पुलिस कमिश्नर 13 दिसंबर को मुकर्रर किया गया। अब तकरीबन 11 महीनों के वक्फे के बाद दोबारा सीवी आनंद शहर के पुलिस कमिश्नर की हैसियत से दोबारा वापस आ गए। हुकूमत ने जिन दीगर ओहदेदारों के तबादले किए हैं इनमें एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस लॉ एंड ऑर्डर महेश भागवत को मुकम्मल जायद जिम्मेदारी के साथ एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस पर्सनल वेलफेयर मुकर्रर किया गया है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल पर्सनल विजय कुमार का तबादला करते हुए उन्हें डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन ब्यूरो मुकर्रर किया गया है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्रोविजन एंड लॉजिक्स एम रमेश को मुकम्मल जायद जिम्मेदारियों के साथ इंस्पेक्टर जनरल स्पोर्ट्स मुकर्रर किया गया है। रियासती हुकूमत ने 3 अहम कमीशन तश्कील देते हुए उनके सदूर का इंतखाब करते हुए जुमे की रात को अहकामात जारी किए हैं। अहकामात के मुताबिक तालीमी कमीशन के सदर ए मुरली रिटायर्ड IAS ऑफिसर को मुकर्रर किया है। उनकी मियाद 2 साल की होगी। रियासती BC कमीशन के सदर जी निरंजन को मुकर्रर किया गया है जो पार्टी के सीनियर लीडर हैं। इनके अलावा कमीशन के दीगर 3 अरकान RJ प्रकाश, T सुरेंद्र, बाला लक्ष्मी और BC वेलफेयर की कमिश्नर रुकन व कमीशन की सेक्रेटरी होंगी। इस कमीशन की मियाद 5 साल की होगी। तेलंगाना ज़रई कमीशन के सदर के तौर पर पार्टी के सीनियर लीडर कोदंडा रेड्डी को मुकर्रर किया गया है। इनकी मियाद 2 साल होगी। ज़रई कमीशन में 7 अरकान होंगे। बहुत जल्द अरकान का तकर्रुर किया जाएगा। पैरालंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली तेलंगाना की एथलीट दीप्ति जीवांजनी को वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने मुबारकबाद पेश की। दीप्ति ने जब वजीर आला से मुलाकात की तो वजीर आला ने दीप्ति को ग्रुप 2 की मुलाजिमत 1 करोड़ रुपए नकद रकम वरंगल में 500 गज की जगह मकान के लिए देने का ऐलान किया। दीप्ति के कोच को 10 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया गया। इस सिलसिले में इक़दामात करने ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। इस मौके पर रुकने पार्लियामेंट बलराम नायक और दीगर मौजूद थे। BRS पार्टी के साबिक वजीर व रुकन असम्बली हरीश राव ने मुतालबा किया कि बायोडाइवर्सिटी के मुलाजिमीन की तनख्वाह अदा की जाए। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि हर माह की पहली तारीख को तनख्वाह अदा करने तशहीर करने वाली कांग्रेस हुकूमत के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी के मुलाजिमीन को 1 साल से तनख्वाह नहीं दी गई है। बजट में 10 करोड़ रुपए मख्तस करने के बावजूद तनख्वाह अदा नहीं की गई है। इस मामले में मुकम्मल लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है। साइंसदानों की हालत कैब ड्राइवर जैसी हो गई है। वो अपने बच्चों की फीस तक अदा करने के मौक़िफ़ में नहीं हैं। हमेशा सियासत को तरजीह देने वाले वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ज़रा तवज्जो देकर साल भर से तनख्वाह से महरूम बायोडाइवर्सिटी के मुलाजिमीन की मुश्किलात को दूर करके उनकी मदद करें। मशहूर सनतकार रवि रहीजा ने वज़ीर आला के रिलीफ फंड में 5 करोड़ रुपए का अतिया दिया है। जुबली हिल्स में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यामगाह पहुंचकर उनसे मुलाकात करते हुए 5 करोड़ रुपए का चेक हवाले किया। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के नए सदर महेश कुमार गौड़ ने हफ्ते के दिन वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के क़यामगाह पहुंचकर मुलाकात की। PCC ओहदा मिलने के बाद पहली बार वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और उनका शुक्रिया अदा किया। रेवंत रेड्डी ने उनको मुबारकबाद पेश की। उनके अलावा कोदंडा रेड्डी ने भी ज़राअत कमीशन के सदर मुकर्रर करने पर रेवंत रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। रेवंत रेड्डी ने भी उनका मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर दीगर कायदीन भी मौजूद थे। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के नए सदर महेश कुमार गौड़ ने नायब वजीर आला भट्टे विक्रमार्का से प्रजा भवन पहुंचकर मुलाकात की और उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर नायब वजीर आला ने उनको मुबारकबाद पेश की। इनके अलावा BC कमीशन के सदर निरंजन और ज़राअत कमीशन के सदर कोदंडा रेड्डी ने प्रजा भवन पहुंचकर नायब वजीर आला से मुलाकात की और शुक्रिया अदा किया। भट्टे विक्रमार्का ने इन दोनों को मुबारकबाद पेश की और इस मौके पर कांग्रेस के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। BRS पार्टी के लीडर देवी प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत में इनकाउंटर्स की शुरुआत हो चुकी है।
मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीआरएस दौरे हुकूमत में 1 या 2 इनकाउंटर हुए थे। उन्होंने कहा कि अमन कानून की खराबी हुकूमत की नाकामी का नतीजा है। गुज़िश्ता 10 साल में केसीआर पुलिस डिपार्टमेंट में कई इस्लाहात लेकर आए थे। देवी प्रसाद ने कहा कि पुलिस इंतजामिया को हुकूमत ने बर्बाद कर दिया है। इस बयान का पुलिस ओहदेदार गलत मतलब ना निकालें। बास पुलिस ओहदेदार जानिबदाराना रोल अदा कर रहे हैं। खम्मम में 4 साबिक वज़रा के दौरे के दौरान उन पर हमला किया गया। पुलिस ने इस मामले पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर जग्गा रेड्डी ने कहा कि उनको सदर बनने की ख्वाहिश अभी खत्म नहीं हुई है और न ही उनकी सोच में तब्दीली आई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में आजादी से बात करने की छूट है। जग्गा रेड्डी ने कहा कि 3 अहम ओहदे 3 तबके से ताल्लुक रखने वालों को दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इलाकाई जमातों में यह मौका नहीं मिलता। बीजेपी में कब किसको ओहदा दिया जाता है और कब तक चलेगा पता नहीं चलता। आला कमान ने कई नामों पर गौर करने के बाद ही फैसला किया है। फैसला लेने से पहले कायदीन से मुशावरत की है। वजीर आला, सीनियर कायदीन और पीसीसी मिलकर पार्टी को आगे लेकर जाएंगे। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने गणेश त्यौहार के मौके पर खैरताबाद गणेश की पहली पूजा में हिस्सा लिया। इस मौके पर उनको तहनीत पेश की गई। रेवंत रेड्डी ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि 70 साल से इसी जगह पर गणेश की मूर्ति बिठाई जा रही है। हैदराबाद शहर में 1,40,000 मूर्तियां बिठाई गई हैं। गणेश मंडपम को हुकूमत की तरफ से मुफ्त बरकी सरबराही करने का फैसला किया गया है। खैरताबाद गणेश उत्सव कमेटी की सताइश की। गुज़िश्ता साल सदर पीसीसी और अब वज़ीर आला की हैसियत से गणेश त्यौहार में पूजा करके आशीर्वाद लिया है। गणेश की मूर्ति पर फूल माला चढ़ाने के दौरान माला गिर गई, जिसको बाज लोग अब शुक्र मान रहे हैं। वज़ीर आला के बाद रियासती गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने खैरताबाद के गणेश मंडपम पहुंचकर खुसूसी पूजा की और इस मौके पर कांग्रेस के कायदीन और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో దేవుడి ఆశీర్వాదంతోని మన రాష్ట్రం ముందడుగు వేస్తుంది. ప్రభుత్వము గణేశ ఉత్సవాలను ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొని గణేశ ఉత్సవ సమితి నాయకులందరినీ, నిర్వాహకులందరినీ కూడా సచివాలయానికి ఆహ్వానించి అందులో ముఖ్యంగా ఖైరతాబాద్ గణేశ ఉత్సవ సమితి నిర్వాహకులను కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారికంగా సచివాలయానికి ఆహ్వానించి వాళ్ళ సమస్యలు తెలుసుకొని గొప్పగా ఈ ఉత్సవాలను నిర్వహించడానికి అన్ని రకాలుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సహకారం అందించడం జరిగింది. ఆ సందర్భంగా హైదరాబాద్ నగరంలో 1,40,000 విగ్రహాలను నవరాత్రి ఉత్సవాలకు నెలకొల్పుతున్నారు. ఈ 1,40,000 విగ్రహ ఈ ఆరాధన కార్యక్రమంలో रियासत में गणेश त्यौहार मनाया जा रहा है। कांग्रेस के हेडक्वार्टर गांधी भवन में भी गणेश की मूर्ति बिठाई गई। पार्टी के कारगुजार सदर जग्गा रेड्डी और पार्टी के दीगर कायदीन ने पूजा में हिस्सा लिया। कांग्रेस कायदीन ने अवाम को मुबारकबाद पेश की और रियासत में खुशहाली के लिए प्रार्थना की। तेलंगाना के बीजेपी के दफ्तर में गणेश त्यौहार के मौके पर मूर्ति बिठाई गई। रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण ने खुसूसी पूजा अंजाम दी। पार्टी के दीगर कायदीन ने भी पूजा में हिस्सा लिया। खम्मम में सैलाब के दौरान अपनी जान पर खेलकर 9 अफराद को बचाने वाले हरियाणा मेवात के साकिन सुभान खान को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से तहनीत पेश की गई है। सुभान खान ने हफ्ते को सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से मुलाकात की। बैरिस्टर अवैसी ने मजलिस की तरफ से सुभान खान को 51,000 रुपए का चेक हवाले किया और उनकी बहादुरी की सताइश की। बैरिस्टर अवैसी ने तेलंगाना के वजीर आला और खम्मम के कलेक्टर से अपील की है कि चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत सुभान को माली इमदाद फराहम की जाए। बैरिस्टर अवैसी ने खम्मम के कलेक्टर से भी अपील की है कि सुभान खान को डबल बेडरूम मकान फराहम किया जाए।
मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में 8 सितंबर बरोज इतवार को बसेरा फंक्शन हॉल में मीलाद ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद किया जाएगा। इस सिलसिले में मौलाना सैयद हसनैन पाशा कादरी, मौलाना सैयद सैफुल्लाह, हुसैन बाकरी, सैफ पाशा, जॉइंट कन्वीनर सैयद शबीर पाशा कादरी, मौलाना सैयद कादरी मोहिउद्दीन, कादरी जुनैद पाशा, अब्दुल हक अहमद खान, सैयद सैफ पाशा, डॉक्टर मिर्जा आसिफ बेग ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हर साल की तरह मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद किया जाता है। उन्होंने कहा कि बिला लिहाज मजहब व तबका अवाम इसमें हिस्सा लेते हैं। इस बार भी अवाम से ब्लड डोनेशन कैंप में बड़ी तादाद में हिस्सा लेने की अपील की गई है। मलकपेट के आजमपुरा चमन के पास क्लॉक टावर की तामीर के काम जारी हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सरपरस्ती में रुकने असम्बली अहमद बलाला हल्का मलकपेट को खूबसूरत बनाने के लिए शब रोज मसरूफ हैं। आजमपुरा चमन के पास क्लॉक टावर और उसके अहाते में सड़क की तामीर के कामों का रुकने असम्बली अहमद बलाला की हिदायत पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार ने मुआयना किया। तामीरी काम के दौरान जमा मलबे को हटाया गया है। बारिश की वजह से सड़क के काम में ताखीर हुई है। जल्द ही क्लॉक टावर और सड़क का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। रुकने असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने टोली चौकी चौराहे के पास जारी NP2 पाइपलाइन के कामों का मुआयना किया। उन्होंने मुताल्लिका महकमे के अहदेदारों को जल्द अज जल्द काम मुकम्मल करने की हिदायत दी। काम में तेजी पैदा करने के लिए मजीद GCPs का इजाफा किया गया। मज़कूरा काम के पूरा होने के बाद बारिश के पानी के बहाव में तेजी पैदा हो जाएगी। इस मौके पर मजलिस के इब्तिदाई सदूर व मोतमदीन और दूसरे मौजूद थे। शहर में जारी शदीद बारिश और कदीम ज़खायर आब उस्मान सागर, हिमायत सागर में पानी की सतह में मुसलसल इजाफे के पेश नज़र उस्मान सागर के 2 दरवाजे 1 फुट तक उठाए गए हैं। हिमायत सागर का एक दरवाज़ा 1 फुट तक उठाया गया है। इससे पहले मूसा नदी से लगे इलाकों के मकीनों को DRF की तरफ से चौकस किया गया। DRF के अमले ने हफ्ते को चादरघाट, अलीनगर, मूसा नगर के इलाकों में गश्त करते हुए ऐलानात किए और मुकामी अवाम से चंद दिनों के लिए महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का मशवरा दिया है। एक्साइज इन्फोर्समेंट डायरेक्टर तेलंगाना VB कमलासन रेड्डी की हिदायत पर TGNAB पुलिस और एक्साइज पुलिस ने हैदराबाद के 2 मुख्तलिफ मकामात पर मशहूर पब्स पर धावे किए हैं। श्रीलिंगमपल्ली में कोरम क्लब और जुबली हिल्स में बेबी लोन पब के बशमूल 5 बार्स पर धावा किया गया है। 37 अफराद के मुआयने किए गए, जिनमें 4 अफराद में ड्रग्स मुस्बत पाया गया। पता चला है कि पेशाब के नमूने लेकर टेस्ट किए गए थे। 12 अफराद के टेस्ट हुए हैं। बेबी लोन पब में 2 अफराद ड्रग्स लेने में मुलव्विस पाए गए हैं, जबकि कोरम पब में 7 के मिन जुमला 2 अफराद ड्रग्स लेने में मुलव्विस पाए गए हैं। बताया गया है कि जिन अफराद में ड्रग्स मुस्बत पाए गए उनमें श्रीकाकुलम का रवि कुमार, मूसापेट का केशव राव, चारमीनार का अब्दुल रहीम और वरंगल का चिन्ना नागेश शामिल हैं। रेन बाजार पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक शख्स ने खुदकुशी कर ली है। तफसीलात के मुताबिक मुतवफ़ी यूनुस का भांजा एक लड़की को लेकर मुबैना तौर पर फरार हो गया था। मुतवफ़ी की दुख्तर ने बताया कि लड़की की वालिदा उनके वालिद को मुसलसिल हरासा कर रही थीं, जिसकी वजह से उनके वालिद ने इंतहाई इक़दाम किया। दूसरी तरफ रेन बाजार पुलिस ने किसी भी तरह की हरासानी से इनकार किया है और वजाहत की है कि सेहत और माली मसाइल की वजह से यूनुस दबाव का शिकार था, इसलिए इसने ये इंतहाई कदम उठाया। मिर्चल मल्लापुर के सनती इलाके में पेंट की कारखाने में आग लगने का वाकया पेश आया है। आग के बुलंद शोलों और धुएं के फैलने से सनसनी देखी गई।
इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाक़या पहुंचा। काफ़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया गया। किसी भी तरह के जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। बताया गया है कि फैक्ट्री में केमिकल्स भी मौजूद थे, जिसकी वजह से आग तेजी से फैल गई। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमान, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टोम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी, ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के नए कमिश्नर CV आनंद, 8 IPS ओहदेदारों के तबादले, तालीम, BC, ज़राअत कमीशन के सुदूर का ऐलान, अहकामात जारी। पहली तारीख को तनख्वाह देने हुकूमत का दावा खोखला। बायोडायवर्सिटी के मुलाजिमीन को 1 साल से तनख्वाह अदा नहीं की गई, हरीश राव का इल्जाम। हैदराबाद के मशहूर पब्स पर एक्साइज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीमों का धावा, 4 अफराद में ड्रग्स मुस्बत पाए गए। और मिर्चल मलापुर के सनती इलाके में पेंट की फैक्ट्री में लगी आग, भारी माली नुकसान का खदशा, जानी नुकसान नहीं। और नाज़रीन के साथ 4TV खबरनामे का यहीं पर इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।